Okay, exports at 8-month high in December. So exports increased by 1%, imports shrink away by 5%. So because of this, we can say even current account deficit has reduced. And as of now, we see no severe hit from the Red Sea wars because of the attack by the Houthi rebels. So this is the graph which is reflecting the trend for the exports, imports, and the trade deficit, the current account deficit, or when we specifically talk about कि even current account may we have classified into two components. One is balance of trade, where we just analyze how has been the trend of the exports and imports or the trade in the goods, which is the tangible thing. And second component is the balance of invisibles when talk about trade in services. So here it is the balance of trade accounts trend that we can see. So this is from December 2022. And as of now, we are seeing the December 2023 May, the exports were higher, the growth was higher, and the imports have reduced by 5%. So this creates more reduction in the current account deficit. So this is again reflecting again Indian economy's resilience when we are seeing globally the demand for goods is declining. Even at that point of time, we are able to manage and ensure that export growth it continues and the momentum continues. So when we talk about drugs and pharmaceutical products exports, they have increased by 9.3%. And apart from this, engineering goods exports is one of the critical and we can say the most important component of the India's exports. So that have also increased by 10 percentage points. Gems and jewelry exports have increased by 14%. So these are, we can say, the main components. And talk about the agricultural exports also. So they have increased when we talk about tobacco, meat, dairy, poultry products. So these are, we can say, the four main components. So import of the crude oil has decreased when we talk about the factors or the areas responsible for the reduction in the imports. So even we saw कि services exports have also fallen by 16.6%. So this is becoming a challenge for us. But before this time period, अगर हम बात करते हैं तो services export has cushioned the growth of, we can say, the exports in India. But since we are seeing कि even IT sector is facing the challenges, so because of that, we are seeing कि exports of the services is declining. WPI inflation, we have talked about the difference between WPI and CPI. And we you can say कि around 1 month ago we talked about कि WPI में जो reforms होने चाहिए. We say कि right now WPI is only calculated for the goods, but we are talking about कि even services should be included in this to make it more comprehensive. So fuel and power, they remained deflationary for the 8th consecutive month as price of crude oil, they remain lower as compared to the previous year. So Karuna, can you explain me the difference between inflation, deflation, and disinflation? Karuna? Ashik, you can explain. इन्फ्लेशन इंक्रीज ऑफ प्राइसेस तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. डिफ्लेशन इज Okay. डिक्रीज ऑफ प्राइसेस और डिसइन्फ्लेशन मीन्स देयर इज इंक्रीज बट इज अ लेस इंक्रीज इन प्राइसेस. मतलब कि अगर 2 4 6 हो रहा है तो Yes, कम होगा. मतलब right. उसका जो फॉर हाँ, तो एग्जांपल we can say, टेंजेंट है ऑफ the ग्रेडिएशन है, ग्रेड कम होगा उसका. ग्रेडियंट सॉरी, हाँ, so ग्रेडियंट कम हो say सकता कि है हाँ, डिसइन्फ्लेशन. deflation is opposite of inflation. So deflation becomes the opposite of inflation. So we're talking about how we can more improve the efficiency of travel and specifically reduce the logistics cost. So for that, since we saw कि fast tags introduce किए गए जो RFID tags है, radio waves, radio technology के ऊपर work करते हैं. So now we are trying कि जो GPS based सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जो कि वी आर सीइंग स्पेसिफिकली यूएसए में वर्क करते हैं. तो उस सिस्टम में हमें कोई स्पेसिफिक टोल गेट्स पे रुकना नहीं पड़ेगा, टोल गेट्स हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, तो उससे ट्रैवल टाइम और ज़्यादा हमारा रिड्यूस हो सकता है. सो वी हैव बीन स्टार्टिंग विद द पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन दिस. सो दिस इज द थिंग. एंड इवन फास्ट टैग के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक व्हीकल के लिए विल नॉट बी हैविंग 2 फास्ट टैग्स और मोर नंबर ऑफ फास्ट टैग्स.
नो करुणा, we're अभी not हाल ही में audible. कौन सी इंडिया ने अपना ओपन फास्ट कलेक्शन, ओपन टोल कलेक्शन बनाया है, जिसमें कि गाड़ी को मंद होने या रुकने की जरूरत नहीं है। कौन सा है? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो। एक तो RFID जिसके टैग लिए जो फास्ट टैग है, उस पे तो आपको रुकना पड़ता है फॉर अ मिनट और टू। और जो सेकंड रिफॉर्म की हम अटल बात कर रहे हैं, जो एडवांस कंट्रीज में फंक्शन कर रहा है GPS बेस्ड, उस पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो एंड उस पे वी आर स्टिल वर्किंग। यस, जो अटल अटल सेतु टर्मिनल बनाई गई है, उसमें रुकने की जरूरत नहीं है। उसमें ओपन टैक्स कलेक्शन का ही कंसेप्ट रखा गया है। इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर information. Then combating aggressive tax planning with pillar 2. So pillar 2 is a dynamic and evolving topic in the global tax landscape which will have an impact on Indian companies. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, why is it important for India to introduce the BEPS pillar 2 in the upcoming budget? सो फर्स्टली यहाँ पे एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए पिलर 2 में क्या बात कर रहे हैं। तो दिस वी कैन से पार्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म। सो हैव यू सीन, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। सो सेवरल कंट्रीज लाइक लग्जमबर्ग, हमने कुछ दिन पहले बात करी, इज द सेकंड वेल्दिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी और अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है, दे हैव इनैक्टेड दिस पिलर 2 लेजिस्लेशन। सो इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं, सो स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT बोर्ड की हम बात करें तो दे आर सेइंग कि pillar 2 alone can get $500 billion to India's revenue. So we can say जो tax to GDP ratio है वो और increase हो सकता है. So yes, it is about the global minimum tax rate and plugging the loopholes that allow the multinational enterprises to shift the profits to low tax jurisdictions. तो होता ये अभी जो challenge है, suppose there's an MNC who's working in India but they are not based in India, उनका जो actual office है, that is in some other jurisdiction. So through the shell companies वो इंडिया का जो प्रॉफिट है थ्रू अगेन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो उसको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड क्योंकि जो टैक्स हेवन कंट्रीज वहां पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो चैलेंज है, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, प्रीलिम्स में पूछी भी गई है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सो इसको कर्व करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस को टैकल करने के लिए वी आर सेइंग कि ग्लोबल एक मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए जो हर एक कंट्री में एप्लीकेबल होगा। सो इस तरीके से जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो हम नहीं उसको हम कर कंट्रोल कर पाएंगे। सो ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है जो BEPS पिलर 2 है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पिलर 2 इज अबाउट imposition of a global minimum corporate tax rate. So this would also establish एक level playing field क्योंकि हर एक कंट्री में सेम टैक्स रेट रहेगा। एंड दिस वुड बी, यहाँ पे लिखा है, combating the tax avoidance also, greater tax transparency, accountability would be maintained, international cooperation बहुत important है for the implementation. So here the term is one earth, one family, one future. So this is there and it would reduce the tax competition also. So equitable global tax system would be there. It would be much more stable and contribute to enhancing the tax transparency by discouraging the harmful tax practices. And it would require the MNEs to report where they make their profits and you have to pay your taxes. So is regarding we also have the double taxation avoidance treaty also कि आपको एक ही कंट्री की jurisdiction में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी we can say कि यही एक तरीके से लूप होल है कि आप टैक्स हेवन वाली कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हो एंड वहां पे आप टैक्स पे करना प्रेफर करते हो क्योंकि वहां पे टैक्स कम है। जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसमें ये किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री को टैक्स पे किया जाएगा? हाँ, वो बायलेटरली कंट्रीज के बीच में डिसाइड होता है दिव्या, कि जो दोनों कंट्रीज हैं दे डिसाइड। एंड सो रूल दैट्स ऑफ हाउ। ओरिजिन भी वर्क करता है। क्या बोल रहे हो सचिन? एंड रूल ऑफ ओरिजिन भी मैटर करता है कि टेक्नोलॉजी कहीं से ले ली बट बना वहां पर है, मैटर तो वो भी होता हाँ, वो रूल ऑफ ओरिजिन या जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो एक्सपोर्ट्स के केस में होता है। एक्सपोर्ट या ट्रेड इन गुड्स की बात करते हैं कि सपोज अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से इंडिया चाहता है कि चाइना से इंपोर्ट ना करे, बट सपोज चाइना
पहले एक्सपोर्ट करते हैं टू वियतनाम और फिर इंडिया वियतनाम से इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को। बट इसीलिए ये बोला जा रहा है कि गुड्स के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कौन सी कंट्री में देव बीन मैन्युफैक्चर्ड, कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं, सो दैट वी आर एबल टू एक्चुअली फॉलो जो पॉलिसीज हैं हमारी। So India on top for the trust in NGOs, businesses, fourth for media. So Davos meet हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बात करी, बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट representatives, they are participating, and India is 35th on the future possibilities, the global index of countries best placed for the leveraging future possibilities. So UK is on the top on the list. So future possibilities index again, it is released by the Newsweek, Vantage, and Horizon Group on the sidelines of the World Economic Forum. And here we see World Economic Forum annual meeting. So they put Saudi Arabia on the top for trust shown by their people in government, and China for the trust in media. Sure. Indonesia emerged on the top, followed by India the second place in terms of trust shown in one's employer. So this is again reflecting, and we can say कि ये कुछ indicating factors हो सकते हैं even to attract FDI in India. So Power Ministry notifies new rules. New rules के according जो large electricity users हैं वो directly grid को access कर सकते हैं. So rationalization of the open access charges, it will lead to faster adoption of renewable energy by the industry and help in reducing the emissions, meeting our Panchamrit targets. As per the amendments, the consumers having more than specified quantum of load energy storage system ESS. So उनको allow किया जाएगा कि वो establish कर सकते हैं, operate और maintain dedicated transmission lines themselves without the requirement of license. तो वो खुद अपनी transmission lines भी establish कर सकते हैं, and they can work upon this. So this would be akin to a similar facility available for generating companies or captive generating stations जो हैं, but this would be only for जो large electricity users हैं. एंड इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज, और जो सरप्लस प्रोडक्शन भी अगर आपके पास होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यू कैन sell that also, you can supply it and connect that to the main grid. Most issues in India UK trade pact have been closed and addressed. They've been addressed. So bilateral investment treaty, free trade agreement negotiations were ongoing. So कुछ we can say issues were around the intellectual property, then rules of origin जो भी हम बात कर रहे थे, tariff reductions, market access, and one of the important areas में अगर हम बोले कि apart from all these, so it is covering all these areas, market access and tariff reductions. So India हमेशा जो tariff reduction की बात आती है तो यहाँ पे ज़्यादा disputes देखे जाते हैं, because we again अब जो हमारा priority area है कि tariff reduction के बाद जो domestic manufacturers and domestic producers के ऊपर impact होगा उसके अराउंड हमारे concerns रहते हैं. तो that is also ये main reason था of not joining the RCEP जो कि आसियान का पार्ट है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो हमारे कंसर्न्स थे कि अगर फ्री ट्रेड प्रमोट करेंगे तो दैट वुड बी इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिकॉज चीपर गुड्स इम्पोर्ट होंगे कंपेयर्ड टू द प्राइसेस एट विच द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स वर प्रोड्यूसिंग, सो दैट वुड बी इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ आर agriculture sector and the farmers also. अगर हम टैरिफ रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन पॉइंट ही ये होता है करुणा, नेम में ये फ्री ट्रेड, कोई टैरिफ्स इंपोज नहीं किए जाएंगे, कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होने चाहिए, फ्री ट्रेड प्रमोट होना चाहिए. सो इसीलिए कंसर्न्स वही जो हमने बोला डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट होता है अगर आप टैरिफ रिड्यूस या इवन कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो, तो वो कंसर्न्स रहते हैं. सो यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक कौन से सेक्टर में आप प्रमोट करोगे. कैन यू रिपीट, क्या बोल रहे हो? I was saying specific, if we say specific to WTO.
तो WTO भी कुछ स्विस फॉर्मूला, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ देता है वो टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। तो उसके बारे में आप इलाबोरेट कर सकते हो? हाँ, सपोज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, सो वहाँ पे वी से कि थ्री थ्री बॉक्सेस, थ्री टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। एक तो ग्रीन बॉक्स है, तो वो ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडीज अलाउ की जाती है जो ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं करती है, सो उनको अलाउ किया जाता है। देन वी हैव द ब्लू बॉक्स एंड देन द एम्बर बॉक्स। सो blue box में they are allowed with certain conditions only for the developing countries, and amber box में they are, we can say, subset of the blue box. So एक ये एग्जाम्पल है। सो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए है, वी कैन से कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल प्रोविजंस बनाए गए हैं बिकॉज दी कंट्रीज आर डेवलपिंग। तो उनके ऊपर आप सडनली इस चीज को इम्पोज नहीं कर सकते हो बिकॉज वो उनकी ग्रोथ के ऊपर हैम्पर करेगा, एंड अगेन दिस वुड नॉट बी प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ, इवन हम ग्लोबल ग्रोथ की भी जब बात करते हैं तो। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। और इस कंसिडर मतलब इस सेंस में इस सेक्टर में तो ये एक मेन एग्जाम्पल यही है। ओके, थैंक यू। देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनके ऊपर अगेन रेगुलेशन, आरबीआई मूव्स रेजिंग हाउसिंग फाइनेंसर्स लिक्विड एसेट्स बार। सो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो है उनका जो लिक्विड एसेट्स की हम कैपेसिटी की अगर बात करें तो उसको इंक्रीज करने के लिए बात की जा रही है। जो अभी करंट सीलिंग है उसको और इंक्रीज करने की बात करें तो उनके पास और वी कैन से की क्रेडिट लेंडिंग कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। सो आरबीआई प्रपोजेस द डिपॉजिट टेकिंग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं रेज their टोटल लिक्विड एसेट्स along with the unencumbered approved securities to 15% of the public deposits from 13% जो भी currently है in a phased manner by 2025. सो रेगुलेटरी रिजीम की तरफ उनको मूव करने की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जैसे नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। सो एंड उसी रेगुलेटरी रिजीम में उनको लेके आने की बात की जा रही है। जैसे वी टॉक अबाउट जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए वी हैव द रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड स्पेसिफाई द यूनिफॉर्म प्रूडेंशियल पैरामीटर्स, and HFCs they will be allowed to hedge the risk arising out of their operations. So hedging the risk एक हम हमेशा ये phrase use करते हैं, even in the stock market also we say जब हम बात करते हैं trading investment in the ऑप्शंस इन फ्यूचर्स ऑल्सो, तो आप हेज कर सकते हो अपना रिस्क। एंड इवन ऑप्शंस को भी यूज किया जाता है टू हेज योर रिस्क। हेजिंग मतलब कि सपोज आपने एक डायरेक्शन के लिए इन्वेस्ट किया, आपका यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू इंक्रीज, बट सडनली ऐसे कोई न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल भी हो सकते हैं। तो आप ऑपोजिट साइड के लिए भी मूवमेंट और डायरेक्शन ले सकते हो यूजिंग दी ऑप्शंस। तो दोनों साइड आपने अपना रिस्क हेज कर लिया। RBI concerned over the high CD ratios of some banks. तो यहाँ पे credit deposit ratios of some banks मतलब हाई क्रेडिट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मींस कि डिपॉजिट कम हो रहे हैं बैंक्स में बट क्रेडिट डिमांड ज्यादा है, तो और बैंक एट द सेम टाइम क्रेडिट भी ज्यादा दे रहे हैं। तो हाउ द बैंक्स दे आर गोइंग टू मैनेज दिस लिक्विडिटी कंडीशन? So this is the concern that has been expressed by RBI and specifically for some of the small finance banks. So it has gone above 100%, which is much higher than the industrial average जो है 80% का है। So this is the thing, and liquidity credit risk हो सकते for the bank, and when the CD ratio is high, it implies कि large portion जो banks का funds है it is tied up in loans, leaving fewer liquid assets क्योंकि deposits already कम है compared to the deposits credit ज़्यादा दिया जा रहा है by the bank। तो अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आती है या नॉर्मली भी अगर सपोज क्रेडिट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द डिपॉजिट्स, सो डिपॉजिटर्स सिंस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो अगर दे वांट टू विड्रॉ देयर फंड्स इन लार्ज अमाउंट्स तो बैंक को एक लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करने वाली सिचुएशन हो सकती है इमर्ज। क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इसलिए हम बोलते हैं कि जो बैंक्स है द पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमेशा हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, ऑफ 1 ईयर इन लेस देन 1 ईयर। सो रिसेंटली हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात करी थी कि हाउ बैंक्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर डिपॉजिट्स। तो उसमें हमने देखा कि बैंक्स ने जो टाइम डिपॉजिट्स हैं या इवन जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज किया है। एंड ऊपर एक आर्टिकल में वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट SROs।
the self regulatory organizations. तो मेरा फीडबैक ऑन फिनटेक एसआरओ सेल्फ जो फिनटेक कंपनीज हैं अभी दे आर सेल्फ रेगुलेटेड, मतलब वो खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं. सो फीडबैक ऑन द फिनटेक एसआरओ फ्रेमवर्क इज बीन सॉट, मतलब आप उनको डायरेक्टली भी जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रेजुअली आप रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करो, आप सडनली हार्श रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं इम्पोज कर सकते हो क्योंकि वो उनकी ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है. तो पहले हम बोलते हैं कि आप सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को फॉलो करो. अगर आप उसको नहीं फॉलो कर पाते हो देन वी से सपोज यहाँ पे आरबीआई वुड इंटरवीन एंड जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है देन वो उनको फॉलो करना पड़ेगा. तो इसलिए इनिशियली एसआरओ फ्रेमवर्क वुड बी देयर for these fintech companies. Like there are several fintech companies, Fintech Association for the Consumer Empowerment, this is one of the, we can say, the pressure groups. So example we can say Paytm हो गया, फोन पे हो गया, भीम यूपीआई एप्स होते हैं जो, then Amazon Pay is one of the fintech. अगर हम जैसे तो एसआरओ के फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली मेजर फंक्शंस क्या प्ले करते हैं इन सेक्टर्स के लिए? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का ये कि उनकी फंक्शनिंग जो है दे नीड टू बी अकाउंटेबल, दे नीड टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, एंड जो वो मेजर्स ले रहे हैं दे नीड टू इंश्योर कि उसके साथ जो वर्स्ट केस सिनेरियो आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और जो हम फंक्शनिंग की बात करते हैं फिनटेक कंपनीज की, लाइक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए. तो इवन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वो कितना ट्रांसपेरेंट है. एंड टॉक अबाउट वुमेन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होने चाहिए. तो ऑल ऑफ दैट इज रेगुलेटेड बाय द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. जो अल्टीमेट एक स्पेसिफिक रेगुलेटर होता है उसका फंक्शन पहले वो परफॉर्म करते हैं. And if they are not able to meet that, then we see कि RBI would be intervening and you will have to follow the RBI regulations. तो concerned over जो practices हैं banks की और जो NBFCs की regarding the we can say regarding here the revenue enhancement tools या जो उनकी fair lending practices होनी चाहिए, we say कि evergreening of loans नहीं होना चाहिए. And यहाँ पे इसलिए RBI is saying कि यूजिंग द पीनल इंटरेस्ट रेट एज अ रेवेन्यू एनहांसमेंट टूल. तो बैंक्स ऐसी प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि उनका अपना रेवेन्यू अगर इन्हांस करना है बिकॉज ऑफ अगर एनी अदर रीजन अगर उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है तो दे आर यूजिंग पीनल इंटरेस्ट रेट, वो उसको यूज कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए. तो बैंक्स, एनबीएफसीज एंड अदर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, they were given an extension of 3 months till April to implement the revised norms. So only reasonable penal charges can be imposed by these different entities. So this is again a practice of fair lending practice, which is again यहाँ पे role of regulator becomes important. ETFs, exchange traded funds, net inflows increase हो रहे हैं, like we have talked about कि how mutual funds, their asset under management have been increasing. So similarly, we are seeing exchange traded funds. There we see people are, their interest is generating, tracking. Indian stock hit a record high in 2023. जैसे कल हमने बात करी कि the market made an all-time high. India focused ETFs, they saw net inflows of $8.6 billion last year. सो ईटीएफ्स में बेनिफिट ये होता है कि आप उनको ट्रेड भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो. प्लस जो कंपैरेटिव अगर हम कॉस्ट भी कंपेयर करते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ईटीएफ्स में कॉस्ट भी कम होती है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैटलाइज रिकॉर्ड रुपीज 9.6 ट्रिलियन मॉपअप. सो इवन हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है we need to take certain steps to deepen the corporate bond market. मतलब we have seen कि initially जैसे इंडिया में सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुई कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो इवन कैपिटल मार्केट में भी इक्विटी सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिला कंपेयर टू द बॉन्ड मार्केट. सो दैट इज वाई वी से कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट या इंटायर बॉन्ड मार्केट के लिए भी सर्टेन स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस जनरेशन. सो यहाँ पे हमें नहीं पता बॉन्ड्स आप कैसे बाय करो, हमें नहीं पता कि बॉन्ड्स खरीदने के फायदे क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के हमें बेनिफिट्स नहीं पता. तो दीज आर सर्टेन मेजर्स. So of late we are seeing कि through newspapers also and through advertisements also awareness is being generated. And इसमें भी कि like मसाला बॉन्ड्स की हम बात करते हैं या ग्रीन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ब्लू बॉन्ड्स की हमने बात करी.
So the world may have its first trillionaire within 10 years. So the world could have its first trillionaire within a decade, which is the Poverty Organization, Oxfam International, said in Monday's annual assessment. And Oxfam, which have been trying to highlight growing disparities between super rich and the bulk of global population. So they reckon the gap has been supercharged since specifically COVID-19 पैंडेमिक के बाद. एंड here we again कैपिटल मार्केट की हम बात करेंगे. वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिली कि हाउ विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड लोगों की वेल्थ मैसिवली इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ अगेन द रिकवरी दैट वी सॉ इन द कैपिटल मार्केट. तो IMF says कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 40% जो ग्लोबल जॉब्स हैं वो इम्पैक्ट होंगी एंड इट वुड फर्दर वर्सन द इनइक्वालिटी. So income inequality effect will largely depend on how much the technology complements the high earners. तो यहाँ पे भी यही कि ऑलरेडी जो इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है उसको उस गैप को और ज़्यादा वाइडन किया जा सकता है या हो सकता है बिकॉज ऑफ द यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जो सुपर रिच क्लास है उनकी एफिशिएंसी को वो और ज़्यादा कितना हद तक इम्पैक्ट करेगी कितना इम्प्रूव करेगी. तो सिमिलरली उनकी इनकम भी किस प्रोपोर्शनेट लेवल से इंक्रीज होगी. तो सिमिलरली ये गैप भी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ AI. मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम हाई इनकम वर्कर्स हुई कि प्रोडक्टिविटी पे जो इम्पैक्ट होगा हाउ इट विल बी इम्पैक्टिंग दी the capital returns. So that's how it can also have a negative impact. जो apart from जो general बात करते कि job losses. So intersection of technology with the traditional sectors can prove to be a game changer. So traditional sectors like हम बात करें MSMEs की हम बात कर सकते हैं. यहाँ पे IT companies की बात की जा रही है. So tech and the modern superpower. So technology अगर हम बात करते हैं इवन कि डिजिटलाइजेशन ने कितना हेल्प किया है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज और इम्प्रूव करने में कितनी हेल्प हुई है एंड इन रिड्यूसिंग दी अगेन दी input cost also in the longer term. So लेबर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि और जो क्रिटिकल न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो और कैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प their businesses even in terms of the outreach of what they are using and in marketing also. So capacity enhancement may technology can help, quality may it can improve, access to the different goods up online. We can talk about कि even e-commerce revolution की वजह से how the traditional sectors have been able to benefit. And technology is not just a sector within Indian economy, it is a catalyst that is propelling the nation towards unprecedented growth. So cusp of a technological renaissance. This is a key word. So India stands at this cusp when we're set to redefine the narrative from being a follower to a global leader in the digital era. So power of technology इस चीज से reflect होती है and we are also seeing कि in terms of international relations how India and India's digital public infrastructure is being adopted in different countries. Changing central bank mandates. So inflation targeting framework की यहाँ बात हो रही है. It needs to be flexible inflation targeting for accommodating the growth. Since we are seeing कि external factors का भी impact हो रहा है एक economy की growth के ऊपर, even in terms of inflation also, not just कि inflation domestic factors की वजह से it is being driven or it is getting impacted. So that is why flexible inflation targeting becomes important. And we say कि there is always this trade-off between inflation control or regulation and the GDP growth. So keeping this thing in also mind, we need to make certain changes in again central bank's mandates. So one, the central bank has swung too quickly across the mandates while other has just shifted to dual mandates. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर country के जो central bank के different mandates as per their economic situation, as per their targets. So
दिस इज थिंग, एंड यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले बात करी है कि सपोज यूएस फेड अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्होंने सपोज रेट हाइक किया है, तो उसके बाद इनिशियली ये देखा गया कि फिर आरबीआई ने भी रेट हाइक किया, तो उस टाइम पे भी ये कंसर्न्स रेज किए गए कि वाई आर वी एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट यूएस सेंट्रल बैंक यूएस फेड इज डूइंग. सो आफ्टर दैट वी सॉ सम काइंड ऑफ इवन आरबीआई गवर्नर ही सेड कि इट इज नॉट द केस, एंड इंडिया जब फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हुई, फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ लिंकेज नहीं बन रहा था. सो आफ्टर दैट वी सो मोर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट स्टांस अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सो आरबीआई के हम अगर रोल्स की बात करते तो वी से कि इट इज रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, इट इज मैनेजर ऑफ करेंसी ऑल्सो, and also the government debt and foreign exchange. So it also must facilitate financial inclusion. So ये एक additional हम बोल सकते हैं कि mandate जो पार्ट होना चाहिए आरबीआई फंक्शनिंग का. सो आरबीआई इन सबको बैलेंस करना पड़ता है, and it has to balance this well, and any oversight it could lead to internal crisis also. So the task is very difficult because again जो हमने बोला trade offs बहुत ज़्यादा exist करते हैं, and flexible inflation target ये majorly यहाँ पे take away from this article. So Milton Friedman is an important economist. So उन्होंने बोला है कि इकोनॉमी की 3 गोल होने चाहिए: हाई एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस होने चाहिए, एंड रैपिड ग्रोथ होना चाहिए. सो बोले में तो इजी है, बट अगेन इसको इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर करना विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, क्योंकि इकोनॉमी में वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि क्या अजम्पशंस हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर थ्योरी. सो रियल लाइफ में उन अजम्पशंस को अगेन इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क, डिफिकल्ट टास्क है, जो कि नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो इसलिए उसको रियल लाइफ में इन 3 गोल्स को एक साथ मीट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस एंड देयर डिफरेंट चैलेंजेस इम्पैक्टिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स. ये टॉपिक हम ले चुके हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दी ग्लोबल एंटी ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन. तो ग्लोबली यहाँ बात हो रही है. सो व्हाट इज आईसीएन? आईसीएन केम इनटू एग्जिस्टेंस 2001. ICN is International Competition Network. So Competition Commission of India was recently made a part of this network, International Competition Network. So जैसे अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना चाहिए, तो सिमिलरली यहाँ पे एंटी ट्रस्ट मेजर्स और जो MNCs हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सो इसलिए ग्लोबली coordination becomes important so as to ensure fair functioning, fair even the functioning of these MNCs in different markets and economies. So 18 members की steering group है, and who are confirmed at the odd numbered years. ICN annual conferences होती है, through consensus the decision is taken. So 141 competition agencies हैं ICN का part, and 129 jurisdictions में they are functioning to advocate the adoption of superior standards and procedures in competition policy around the world, formulate proposals for the procedural substantive convergence, facilitate effective international cooperation, so that ultimately consumers' welfare is upheld. There are fair marketing practices जो use होनी चाहिए. So exchange of the best practices, human resources, transfer of technology. So ये कुछ areas हैं जो again India would be highlighting them, and India can have the years of OECD, UNCTAD, and World Bank and other such bodies. Okay, Divya. इसमें दिखाया कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई, जिसमें ऑक्सफैम नामक जो संस्थान है वो रिपोर्ट जारी करता है असमानता और वैश्विक कॉपरेशन शक्ति के ऊपर. इसमें इन्होंने कहा है कि जब हम देखते हैं कि विश्व में जो
अमीर है उन्हें और अमीर होने में या खरबपति को और खरबपति बनने में सिर्फ 1 दशक का टाइम लगता है। वहीं जब हम गरीबी खत्म करने की बात करते हैं तो उसमें 2 शताब्दियों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 200 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। उसके लिए इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से 2020 में जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 5 सबसे अमीर लोगों के बारे में सूची जारी की गई थी, अगर उनकी पिछले 3 साल में अगर हम आय की बात करें तो 405 अरब डॉलर से बढ़कर दुगनी हो गई, जो कि 869 अरब डॉलर है। जो इस चीज को दिखाता है कि 3 साल में 52% अधिक शेयर उनका बढ़ गया है। तो यहाँ पर दिखाता है कि कितनी असमानता है और असमानता को दूर करने के लिए कितना अधिक समय लगता है। इसी से हम देख सकते हैं कि जो नीति आयोग द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें अलग अलग तरह के इंडिकेटर को इन्वॉल्व किया गया है। जब हम इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें 3 से 5 मापदंड को तय किया गया है, लेकिन नीति आयोग द्वारा जो इंडिकेटर तय किए गए हैं वो भारत की स्थिति के अनुसार है कि किस तरह से किस जगह पर किस चीज की कितनी आवश्यकताएं हैं, उन्हें उनकी पूर्ति के लिए उनके अनुसार स्कीम बनाई जाती है और उनके लिए जो मिनिमम जरूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए उनको किस तरह से उनके पास पहुंचाया जाए। तो उस चीज के अनुसार हम देखते हैं कि पिछले 1 दशक में 24-25 करोड़ जो लोग हैं वो उस पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जो कि इस चीज को दिखाता है कि जो असमानताएं हैं उसको कम करने के लिए कितनी अधिक मेहनत और कितना अधिक समय लगता है और उसके लिए एक निश्चित दिशा का होना अनिवार्य है। जब दवा ही मर्ज बन जाए, यहाँ पर है कि जो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनका लगातार और अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से वो उनके अंदर जो बैक्टीरियल ड्रग रेजिडेंस है वो उत्पन्न हो गई, या फिर उन्हें सुपरबग कहा जा सकता है। जिस तरह से इंसान के अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती जाती है, इसी प्रकार की प्रक्रिया हमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कवक होते हैं, परजीवी होते हैं, फिर जो और जो इंसेक्ट होते हैं जिनकी वजह से कोई भी डिजीज होती है जैसे डेंगू होता है, तो उन सब के अंदर भी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं या जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो उनके ऊपर काम नहीं करती। और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली जो एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा रीजन ये है कि जिन दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया है उनकी भी बिक्री हो रही है। अगर कंपेयर किया जाए 2008 से 2020 के बीच में तो 33% से बढ़कर 37% हो गई है। तो उसको किस तरह से कम किया जाए और पूर्ण रूप से जो एंटीबायोटिक्स का निर्भरता है उसको किस तरह से कम किया जाए कि जो जिस चीज के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए उसमें ही हो, कि हर एक बीमारी के लिए या हर एक चीज के उपाय के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक के ऊपर निर्भर ना रहा जाए। उसका उसके अलावा उसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसके बारे में अभी नहीं पता, और उनको किस तरह से ढूंढा किस तरह से उनको विकल्पों को चुना जा सकता है। हम देखते हैं कि जो मरीज की अंदर लापरवाही देखने के लिए मिलती है, जो स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होती, या फिर काफी बार होता है कि जो पूरा इलाज की प्रक्रिया है वो बहुत महंगी होती है तो इसलिए पूरा इलाज नहीं हो पाता, वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं उन्हीं को ही खा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में और प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इसको किस तरह से रोका जाए, जो कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि किस तरह से 20 लाख लोग एक बीमारी से संक्रमित हुए थे जिसमें से 90,000 की मौत हो गई, जिसका एक कारण था एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत उपयोग। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि कितनी बड़ी संख्या में एक आपदा का कारण हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से रोका जाए इसका प्रयोग सिर्फ एक ही जगह देखने के लिए मिलता है, केरला में, जहां पर जो पहला राज्य बना है जो एंटीबायोटिक के प्रयोग पर अंकुश लगाएगा कि किस तरह से इनका सही प्रयोग किया जा सके, उसके प्रशिक्षण से सीखा जा सकता है और उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। कल्पमेदा विचार भेद को लेकर यह हम असहिष्णु और असहनशील बन जाते हैं जो हमारी कमजोरी और कायरता होगी। आचार्य तुलसी। असहिष्णु और सहनशील मतलब असहिष्णु और इंट्रोवर्ट सब, असहनशील। कि हम किसी चीज को अपना धैर्य नहीं रखते या फिर पेशेंस नहीं रखते, उस चीज को खो देते हैं पूरी तरह से। तो असहनशील और असहिष्णु। इसमें ऊपर करना एक बार पेज नंबर 4।